All right, back with India Market Open right here on NDTV Profit, and we'll be having corporate voices on the show, Mr. Anil Agarwal of Vedanta in our studios, and we'll be here shortly, and we'll talk to him. Well, they are in a silent period, I'm told, so we'll talk about what's happening in the space at large, but it'll be important to get his perspective. He's founder and chairman of Vedanta Resources. We'll of course get him to ring the customary bell as well on BSE. I mean, since the markets are here, it's the gong is here, might as well get some of the best voices to do that. Just keep in mind that commodities by and large have done well in the session today, and it'll be interesting to get Mr. Agarwal's perspective on the same. He's entering our studios now as we speak, and it'll be great for him to first get that gong going of the Bombay Stock Exchange first, and then have him talk to us about what could happen ahead. Mr. Agarwal, great having you. Agarwalji, we request you to give your blessings to NDTV Profit and to symbolically ring the BSE bell. It's our pleasure. Great. Amazing. Aye. Mr. Agarwal, please join us on the table, as we would love to talk to you about how you feel about the mood in corporate India Inc. currently, and what could 2024 hold in store. Please, sir. Thank you for joining us in our studios. Thank you. Please sit. Anilji, welcome. Welcome to NDTV Profit. And at a time when I think दुनिया ने मान लिया है कि भारत का समय है. The world has recognized that we are the bright spot. Our markets today, by the way, जिस दिन पर आए हो, we are, I think, just a little short of 21,000. Wow. So it's a great day for the markets as well. About 50 points up on the Nifty, about 168 points on the Sensex. Let me start with how you see where we are right now in the India story. And you have seen this journey through its ups and downs. Aapka perspective. No, thank you very much. First of all, I must congratulate NDTV Group, especially NDTV Profit, which is starting today, and the energy level of each of you. I know all of you from long time, and India was missing this channel because it was not there, because you were the darling and the heart of the retail investor, which used to take guide, because NDTV Profit always work on the honesty, सच्चाई पे विश्वास करते थे जी, और लोगों को बहुत भरोसा था कि जो गाइडेंस NDTV Profit से मिलती है उसको मन में ध्यान रखते हुए वो इन्वेस्ट करते थे, और लोगों को विश्वास था कि जो आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है. तो आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आपने ये NDTV Profit स्टार्ट किया. हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टर आगे आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योर आगे आ रहे हैं, हमारे किसान आगे आ रहे हैं, हर आदमी स्टॉक मार्केट से जुड़ना चाहता है, और इसमें आप लोगों का इतना बड़ा सहयोग रहेगा ऐसा मेरी उम्मीद है. बहुत बधाई. We are hoping for your blessings, your guidance, and also your assessment of the economy, Agarwalji. We've seen better than expected Q2 GDP numbers, 7.6%. In about 20 minutes from now, the RBI governor will speak. We'll see what the RBI's assessment is of where GDP will go. But do you believe that this is now showing that we've come out of the COVID pain? Now we are in a good place and this will consistently grow. What is your outlook on this? See, where is the country like India, where 1.4 billion people, 140 करोड़ लोग रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, और उस कंट्री में आज 65% लोग बिलो मिडिल क्लास हैं, और आप देखेंगे फ्यू इयर्स में ये सब मिडिल क्लास में जाने वाले हैं, और इन सब को हर चीज़ चाहिए. उनको आज इम्पेशेंट हैं
कि उनको स्कूटी चाहिए, उनको टीवी चाहिए, उनको रेफ्रिजरेटर चाहिए, उनको वॉशिंग मशीन चाहिए, उनको बच्चों की स्कूल अच्छी चाहिए, हर चीज़ उनको वो देख रहे हैं, उनको चाहिए। और ये सब हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होगा, मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ेगी। $2000 की पर जीडीपी इनकम है, वो $5000 आप देखते देखते आप देखिए हो जाएगी। और हर लोग गृहिणी को, स्पेशली लेडीज़ को भी बहुत इंटरेस्ट आया है कि हम एक पैरेलल इनकम डेवलप करें। और पैरेलल इनकम डेवलप करने के लिए उनको एक सही गाइडेंस चाहिए, और वो आप लोग देंगे। उसके बाद आज जो प्लेटफॉर्म में, पुराने टाइम में बिचौलिए जो थे, बहुत पूरे सही बात मालूम नहीं होने देते थे और लोगों को नुकसान हो जाता था। आज आप लोगों की वजह से ट्रांसपेरेंसी आ गई है, हर आदमी को इतना विश्वास है, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म खुल गए हैं जहाँ पे कि वो सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं उन्होंने किस भाव में लिया, किस भाव में बेचा, उनको गाइडेंस मिलेगी। ये आप जो काम कर रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट, मैंने बहुत सोचा, ये प्रॉफिट के लिए आप अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप जनता की प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, जैसे उनकी पैरेलल इनकम डेवलप हो। और इंडिया में तो आगे बढ़ ही रहा है। इंडिया विल बी दी फैक्ट्री टू द वर्ल्ड, क्योंकि चाइना प्लस, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सब लोग इस कंट्री में काम करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, जोग्राफिक हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है। आज हिंदुस्तान का हर आदमी प्रीमियम है। मैं लंदन में 25 साल से रह रहा हूँ। अगर किसी कंपनी का सीएफओ इंडियन है तो उसका स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है। ये तो क्यों हो गया? ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, viewers, since Vedanta Group is in a silent period, we won't talk about Vedanta numbers, but or Vedanta questions. But अग्रवाल जी, आपसे एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगा। आप you talk to a lot of global investors all through the years as well. स्टॉक मार्केट के जो फंड मैनेजर्स हैं वो तो हमें बताते हैं कि देयर आर अ नंबर ऑफ फंड मैनेजर्स जिनको अभी इंडिया में इन्वेस्ट करना है। वैल्यूएशंस एक तरफ है, बट अगर 70 कंट्रीज इलेक्शंस में जा रही हैं तो एक ग्रोइंग कंपनी जिसमें स्टेबल पॉलिटिकल कंटिन्यूटी लग रही है वो इंडिया है। तो वो नेक्स्ट 5 साल अभी से देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें इंडिया में निवेश करना है। आप जब लोगों इन्वेस्टर्स से बात करते हैं टू इन्वेस्ट इनटू योर बिजनेसेस, टू इन्वेस्ट इनटू इंडिया इन जनरल, उनकी क्या राय है? आर दे वांटिंग टू कम इनटू इंडिया लॉक स्टॉक बैरल? क्या उनको इंडिया में कोई भी वैल्यूएशन पे आना है? इंडिया में कंपनियां कहाँ हैं? अभी तो शुरुआत हुई है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात हो गई है, जो पॉजिटिविटी आई है, जो पॉजिटिविटी आप देखिए सेबी में, जो जिस हिसाब से सेबी आज पहले एक हवा होता था कि सेबी क्या है, आज वो मलाई हो गई है। उनको काम करना है। आरबीआई आप देख लीजिए, बीएसई आप देख लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई आप देख लीजिए, रिजर्व बैंक को देख लीजिए, ये सब लोग, इनको ये समझ में आ गया है कि ये कंट्री जो है इज़ अ कंट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर, दिस इज़ अ कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये दूसरा अमेरिका है, ये दूसरा अमेरिका है। खाली हमारे और अमेरिका में यही फ़र्क है कि हम डेफिनेटली काम करना चाहते हैं, हमारे यहाँ संस्कार भी है जी। तो संस्कार के साथ में जब ये भी कंपनियां तो शुरू हुई हैं, और जो जितनी फैक्ट्रियां लगेंगी, जितना रोज़गार बढ़ेगा, अब गवर्नमेंट जो देखिए, जो बाहर वाले इन्वेस्टर हैं उनको ये लगता है कि लैंड रिफॉर्म चाहिए, उनको लैंड जल्दी चाहिए। हमारी सारी लैंड 7/12 हो गई हैं। आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है कि जल्दी से जल्दी जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं उनको लैंड मिले। क्लियरेंसेस हैं वो जल्दी से जल्दी मिले। 15,000 कंपनियां आज एनसीएलटी में हैं। ये तो ईश्वर का नियम है। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। 4 कंपनियों में से एक कंपनी खराब जाती है। ऐसा रूल आया है कि ये कंपनियां जल्दी से जल्दी चालू हों। जो बंद पड़ी हैं वो तो नासूर है।
वो जल्दी से जल्दी चालू हो। कोर्ट ने, जुडिशरी ने जो आज पॉजिटिविटी, आज हमारे चीफ जस्टिस ने कहा है तारीख पे तारीख बंद होनी चाहिए। ऐसा कभी सुना नहीं, ऐसा कभी सुना नहीं। इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि छोटे से छोटे लोगों को भी एक जस्टिस मिलेगा। कमर्शियली अगर आगे, आज जो वॉर है वो वॉर खाली इकोनॉमिक वॉर ही है, और इकोनॉमिक वॉर में जो अपॉर्चुनिटी इंडिया को आई है वो अनपैरेलल है। हर आदमी पैसा लगाना चाहता है, लेकिन कहाँ लगाए, यही वो देख रहा है। अगर ये जिस हिसाब से गवर्नमेंट मोबिलाइज हुई है, जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी बात यही कर रहे हैं कि गरीबों की बात कर रहे हैं, हमारी लेडीज़, आप लेडीज़ को जो पूरे हमारे डीएनए है, इनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इनको आगे सपोर्ट करना है। खाली 10% लेडीज़ इंडिया में काम करती हैं अगेंस्ट दी एवरेज ऑफ 30% ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे यहाँ लेडीज़ बेटर माइंड है, वो मल्टीटास्कर हैं। ये तो बात सही है, मल्टीटास्कर। ये तमन्ना भी हाँ बोलेंगी, मैं भी हाँ बोलूंगी। ये तो बात सही है। तो ये भी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी उनको, बिल्कुल, ये भी उनको अपॉर्चुनिटी आएगी। वो फैक्ट्रियाँ भी लगाएंगी, काम भी करेंगी, स्टॉक मार्केट में भी आएंगी, इन्वेस्टमेंट भी करेंगी। सर, तो आपके हिसाब से, और मैं बाद में हम ये भी जानना चाहेंगे कि भारत, एक्चुअली में लेट्स स्टार्ट विद दैट, कि ये इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होगा अगले दशक में, वो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? हाउ इंपॉर्टेंट इज इंडियाज हेल्थ फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी? सबसे ज़रूरी है कि इंडिया पे कॉन्फिडेंस है। देखिए, अभी अभी निकला था कि टेक्सटाइल में इंडिया विल लीड। $1 ट्रिलियन का मार्केट खाली टेक्सटाइल में आने वाला है। अभी अभी निकला है, लोगों ने हम लोग को इतना साइकोलॉजिकली हम लोग परेशान कर दिया था कि बिलो द ग्राउंड आप कुछ कर नहीं सकते हैं, सारे एनजीओ लग गए थे। अभी निकला है कि $11 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग बिल गेट, वो बोल रहे हैं कि हमको बिलो द ग्राउंड लगाना है। और वो इंडिया जो है सोने की चिड़िया है, हम लोग सोने की चिड़िया थे। हमारे पास क्या नहीं है, हम ऑयल, गैस, सोना, चांदी, कॉपर, फर्टिलाइजर, एनीथिंग यू टॉक अबाउट, सब हमारे यहाँ है। और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उसी में क्रिएट हो सकता है और सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन उसी में मिल सकती है। और अगर वो पैसा हम इंपोर्ट में नहीं लगाकर हमारे डेवलपमेंट में लगाएं, हमारी हिंदुस्तान बदल जाएगा। क्रॉस फिंगर्स फॉर दैट। यू नो अनिल जी, आपके बात करते करते वी आर ओनली 25 अंक, 25 पॉइंट्स अवे फ्रॉम 21,000 साइकोलॉजिकल। कभी सोचा था $4 ट्रिलियन? एग्जैक्टली, क्या बात हो रही है। मार्केट कैप $4 ट्रिलियन। लोग कह रहे हैं ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है। अच्छा, एक चीज़ बताइए अनिल जी, मैन्युफैक्चरिंग का समय आ गया, सब कह रहे हैं दैट दिस इज नाउ द टाइम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एंड यू हैव सीन क्लोज हैंड हाउ ट्रेडिशनली इट्स बीन डिफिकल्ट in India to manufacture and be exported to the world, to be the factory to the world. Price, quality, policy, all have been a hindrance. Do you think that's changed now? We are truly poised to be and to look at our next manufacturing boom? There is no question. अभी यही एक ही बात है कि डिस्क्रिमिनेशन भी ख़त्म होता जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़बरदस्त था कि गवर्नमेंट की कंपनियों को और प्राइवेट की कंपनियों को, हमारे गवर्नमेंट तो हमारे माई बाप है, वो सबको एक नज़र से देखे। अगर गवर्नमेंट के कोई प्रपोजल है वो फास्ट हो जाते थे, क्लियरेंसेस ज़्यादा जल्दी हो जाते थे, उनको फंडिंग जल्दी मिल जाती थी। अभी ये धीरे धीरे हमारे जो IAS ऑफिसर हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट माइंड हैं। उनका जो माइंड है, अगर उनको फुल सपोर्ट मिले और उनको पूरी सिक्योरिटी मिले और कॉन्फिडेंस मिले, ये दुनिया बदल देंगे, ये दुनिया बदल देंगे। और गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन अ बिजनेस। जिस हिसाब से रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, और आज का ज़माना जो है बड़े आदमियों का तो है ही, आज का ज़माना आ गया है एवरेज आदमियों का, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आज का ज़माना आ गया है हमारी वुमेन पावर का, आज का ज़माना आ गया है एजुकेशन का। ये हिंदुस्तान में जो आ रहा है, जो नई चीज़ आ रही है, ये मेरे को बहुत एक्साइट करती है। अनिल जी,
2024, 2025 अगर इकोनॉमिक हेल्थ की बात करें वर्ल्ड की और इंडिया की भी, सो इंडिया सीम्स टू बी एक मार्केट या एक कंट्री जहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रहेगी, बट वर्ल्ड ओवर देयर आर प्रॉब्लम्स. चाइना में थोड़े इश्यूज हैं, यूएस ग्रोथ शायद नीचे आ जाए. तो ये ग्लोबल स्लो डाउन का इंडियन ग्रोथ पे आपके नज़रिए से और इंडियन बिजनेसेस पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये भी एक नेचुरल, एक प्रकृति के हिसाब से बदलाव आ रहा है. बदलाव आ रहा है कि जो चाइना था, रशिया था, लोगों में एक उनकी मोनोपोली टाइप थी, वो चेंज होके एक ऐसी जगह लोग आ रहे हैं जहाँ ट्रांसपेरेंसी है, जहाँ जुडिशरी है. जुडिशरी भी बहुत फास्ट रिफॉर्म करना पड़ेगा और हो भी रहा है. डिजिटलाइज हो रही है. इकोनॉमिक ग्रोथ, उनको भी इकोनॉमी में प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. वे कोई प्रोडक्शन बंद नहीं हो, लोगों को क्लियरेंसेस जल्दी से जल्दी मिले. सेल्फ सर्टिफिकेशन, जितना विश्वास करेंगे एंटरप्रेन्योर पे, जितना विश्वास करेंगे आप एंटरप्रेन्योर पे, उतनी कंट्री आगे बढ़ेगी. पहले हम लोग सोचते थे कि बाहर के लोग आएंगे, आज हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर बाहर के लोगों को लेके आएंगे. बिल्कुल यही हो रहा है. डायरेक्ट आने में जब तक एक पार्टनरशिप डेवलप नहीं होगी, क्योंकि लोगों को विश्वास हो रहा है हमारे यंग लोगों पर, वही पार्टनर लेके आएंगे, वही फंडिंग करेंगे, बाहर के लोग भी आएंगे सब. लेकिन जो मेरे को जो एक्साइटमेंट होती है वो यही होती है कि जो हमारे जो बच्चे, यंगस्टर जो बाहर निकल रहे हैं, जो स्टार्टअप चालू कर रहे हैं, उनको और सपोर्ट करें. उनको सपोर्ट मिल भी रहा है, उनको सीड फाइनेंसिंग भी मिल रही है, बाहर से भी मिल रही है, बैंकें भी दे रही हैं, लोग भी दे रहे हैं. ये पूरी हमारा हिंदुस्तान बदल देगा. अनिल जी, एक आपसे मैसेज चाहिए हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए भी आपका गाइडेंस कि एक बिजनेस चैनल से, एंड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आवर व्यू इज दैट एवरी इंडियन शुड पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ स्टोरी, not just those who have access to a lot of money or technology. Everyone should participate. What would be your guidance for us? One message is for our 1.4 billion people, उसमें 50% लोग, पहले 2-4% लोग ही लगाते थे. कोई चिट फंड आ जाता था, कभी कोई ये आ जाता था, कभी ये फ्रॉड हो गया. आज का ज़माना, एनडीटीवी आया है, एनडीटीवी की एक रेपुटेशन है. मैं बहुत बधाई देता हूँ पूरी टीम को. हमारे संजय पुगलिया जी हैं, हमारे चेयरमैन यूके सिन्हा साहब हैं, आपकी पूरी टीम है. सबको ये काम प्रॉफिट के लिए नहीं हो रहा है, ये काम हो रहा है कि देश आगे बढ़े. आप एक कम्युनिकेशन चैनल हैं जिससे हर आदमी को एक इनकम का सोर्स मिले, एक ट्रांसपेरेंसी आए. लोगों को आप गवर्नमेंट को आवाज़ पहुंचाएं क्या चाहिए, रेगुलेटर को आवाज़ पहुंचाएं क्या चाहिए, पूरी दुनिया में खबर पहुंचाएं कि हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ रहा है. जो एनडीटीवी पहले करता था, आज भी मैं देख रहा हूं वही चेहरे आए हैं और इसको लेके आप आगे बढ़ेंगे. एब्सोल्युटली. बहुत बहुत शुक्रिया अनिल अग्रवाल जी, इस दिन पर हमारे स्टूडियो में आने के लिए. आप खुद आए हैं हमारे स्टूडियो. इट्स रियली अ बिग डील फॉर अस. थैंक यू so much. Once again, thank you very much to all our viewers of NDTV. This is the one channel you can rely on, you can trust, and the team. And I wish all of you to the very best. Take our country forward. You are one of the people who can be one of the person. ये हमारा movement है, ये एक आंदोलन है जिसमें आप हम लोग सब साथ में लगे. जी. थैंक यू सो मच सर. रियली अप्रिशिएट योर टाइम. मच अप्रिशिएट. थैंक यू.